हमारा जो अगला सेशन है, अब तक वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम द क्लेफ्ट वॉरियर्स, राइट? नाउ वील हियर द अदर साइड. Okay, these are our experts, our doctors. They are also cleft warriors, but let's hear from them. Today we have, give me a second and let me tell you, they're joining from Delhi. Remember I said we have people joining from across the country. So yes, everything that you want to know about the timelines of cleft care from birth to adulthood, because it's a journey, है ना? So we're fortunate to have two veteran medical professionals who are joining us today, the plastic surgeons, and like I said, veteran medical professionals. We have Dr. Karun Agarwal, who's a senior consultant, plastic surgery and Smile Train project director, National Heart Institute, New Delhi. He is also a member of Smile Train's Global Medical Advisory Board. He will be joining for this session to talk about the timelines of cleft care along with Dr. Puneet Batra, who's a specialist cleft orthodontia and a Smile Train partner doctor from Sant Parmanand Hospital, which also is in New Delhi. Dr. Batra will be joining Dr. Karun Agarwal to share the different clinical aspects of cleft care. We also have your moderators for this session. We have Sharmishta and we also have Leela, and they're from Smile Train. So if you have questions, I'm sure सवाल आपके पास बहुत होंगे जब ये सेशन हो रहा होगा, तो प्लीज आपके सारे सवाल जो है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? एंड वी विल टेक ओवर दोस क्वेश्चंस. सो फॉर नाउ ओवर टू आवर डॉक्टर्स. Okay. Good afternoon, everybody. Hope I am audible, Armani. I'll share my screen for our presentation, and I'm sure Dr. Puneet will add on to the requirement. It is I will call for that. Yes. Good afternoon, everybody, and I welcome all of the participants, the children born with cleft, grown up with our deformity and corrected deformities, and the parents of children, and all the participants here. This is a unique opportunity to speak to this community. We always try to talk to them as patients in our hospitals, and when we manage, we have got relatively short stint of talking to them about other than the surgery and the cleft care and the technical aspect. And thanks to Smile Train, who has given this opportunity to create this forum in which we can talk to them at their personal level and other than the hospital atmosphere, where we can discuss their other issues which are related to the cleft care. Now, before I go to the timeline, I will have a very short presentation about what are the types of cleft we see, so that you know that there are so many variety and it differs from person to person. Next, please. Now, can somebody change this slide? Yes. These are the three patients of different kinds of cleft lip. You can see one is cleft lip, one side, other is the two sides cleft, and other is the midline. So it varies from person to person. It can be partial, it can be microform, it can be one side, it can be two sides. Next, please. You can have different types of cleft palate, and you can see you can have the partial cleft palate, you can have complete cleft palate, you can have cleft palate in which the hole is not seen, but the muscle is not united inside. So this is also a type of cleft palate. So palate also is different. So you can have only cleft lip, you can have only cleft palate. Next, please. And you can have a set of children who have got cleft lip, cleft of the alveolus and palate. And this can be of one side or it can be of both sides. So you have got different dimensions, you have got different types of cleft, different degrees of cleft, and the problems related to each one of them is different. So the timeline will also differ, and care will also differ for different children of different types of cleft. Next, please. Now, coming to how many children are born like this. We get around 35 to 40,000 children in our country every year.
You can see the magnitude of the problem. It's not only your one child or 200 children participating today. It's 35 to 40,000 per year. And globally, we have got 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल ग्लोबली होते हैं और ऑन एन एवरेज कहते हैं हम कि हर 700 यदि लाइव बर्थ है तो उसमें एक बच्चे को क्लेफ्ट होता है, तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी बच्चे होते हैं जिनमें, और इन बच्चों में भी आप ये सोचिए कि कितनी सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चों में 2 सर्जरी की ज़रूरत होती है, किसी में 3 की सर्जरी की ज़रूरत होती है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ देयर मैनेजमेंट काफ़ी होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्यों होता है? ये इसका जवाब न मेरे पास है, न डॉक्टर पुनीत के पास है, न किसी के पास है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें हमको पता ही नहीं चलता कि क्या इसमें कारण है जिसके कारण क्लेफ्ट होता है, और हर पेरेंट्स पूछते हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, चाहे शहर से हो, चाहे गांव से हो। ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है जब हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आते हैं। एक ही चीज हमको पता है कि जब जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो वो फैमिली में होता है, और एक बच्चे में यदि है तो दूसरे बच्चे में पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम जो है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन बाकी चीज़ों का कोई वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्टर नहीं है, कारण नहीं है। और हम कहते हैं कोई दवाई हो, कोई विटामिन डिफिशियंसी हो, कोई बीमारी हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सब चीज़ के कारण क्लेफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका जवाब बिल्कुल सही जब तरीके से कोई एकदम कॉन्क्रीट जवाब हमारे पास नहीं है एज ऑफ नाउ। काफ़ी रिसर्चेज हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है इट विल टेक सम टाइम टू गिव द करेक्ट आंसर। तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट प्लीज। नो, अब ये होता है कि अब टाइमलाइन की बात आती है कि कब पता चलता है और कब कैसे मैनेज करते हैं। आजकल हमारे क्लिनिक में, पहले तो आज से 10-15 साल पहले पता नहीं चलता था, अल्ट्रासाउंड उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं था और गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती थी। अब क्या है कि 22nd वीक में जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है तो अच्छे क्वालिटी के अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा अब हमें क्लेफ्ट लिप पैलेट का पता चल जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन। आजकल हमारे पास 40 to 50% ऑफ बच्चे आ रहे हैं जो प्री नेटली डिटेक्टेड हैं 22 से 24 हफ्ते के टाइम में उसको अल्ट्रासाउंड। तो हमारा काम ये होता है कि हम ऐसे टाइम में कोई जांच की ज़रूरत होती है तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है वो सब जांच करवाते हैं और देखते हैं कि क्लेफ्ट के सिवाय और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और यदि कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है एंड वन शुड कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। और यदि कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आपको उस हिसाब से आपको सलाह दी जाती है और आपको तैयार किया जाता है कि यदि मान लो क्लेफ्ट लिप पैलेट है तो जब बच्चा पैदा होगा तो आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। ये जब प्री नेटली डिटेक्टेड होता है तो ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम तैयार करें। नेक्स्ट। और यदि बर्थ के बाद डिफेक्ट पता चलता है, जैसे पहले हमेशा होता था कि भाई भगवान की देन है और बर्थ के बाद पता चलता है, तो एक क्लेफ्ट लिप में यूजुअली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में जब फीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम तैयार करते हैं, आपको बताते हैं कैसे फीडिंग देना है, कैसे आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उसका ख्याल करते हैं। लेकिन उसके साथ में हर बच्चे का जो नॉर्मल विटामिन और सप्लीमेंट्स है, फीडिंग है, न्यूट्रिशन है, इसका हमेशा हमें ख्याल करना चाहिए और करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस समय में हमारा एक बहुत अहम मुद्दा होता है वो न्यूट्रिशन का है, जिसमें बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है सही समय में। लेकिन जब ऑपरेशन जब करते हैं तो उस टाइम न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको फीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल करनी होती है, जिसके बारे में हमारा स्माइल ट्रेन में, सेंटर्स में, क्लेफ्ट सेंटर्स में आजकल बहुत ज़ोर है ताकि आपका बच्चा सही रहे, सेफ रहे और क्वालिटी ऑफ सर्जरी रिमेन्स गुड। नेक्स्ट प्लीज। और काफ़ी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से कैसे आपको फीडिंग देना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, और इसके बारे में हर सेंटर में नर्सेज होती हैं जो आपको सही सलाह दे सकती हैं। तो उसके बारे में जब बच्चा पैदा होता है, यदि फीडिंग की प्रॉब्लम है तो उसे कांटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट। हमारा इतना सारा बात करने का
रीजन ये है कि हम ऐसे बच्चा देना चाहते हैं, जो ऐसे बच्चा जो डिफेक्ट होता है उसको हम ऐसे क्रिएट कर सकें कि वो नॉर्मल बच्चा रहे और नॉर्मल सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो सके और नॉर्मल लाइफ जी सके। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, डबल क्लेफ्ट होने के बाद भी बच्चा जो है एब्सोल्युटली नॉर्मल लगता है और एकदम आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दूसरा। नेक्स्ट प्लीज। आप देखिए, बड़े होने के बाद कभी कभी कुछ दांत वगैरह ठीक करने की जरूरत पड़ती है, वो डॉक्टर पुनीत बत्रा और उनकी टीम जो है सही कर सकते हैं और एकदम नॉर्मल बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ आवर केयर, एवरीबडी इज स्माइलिंग। नेक्स्ट प्लीज। नाउ लेट्स सी, ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगा कि हमारा आज का उद्देश्य है टाइमलाइन बताना। मैंने बताया प्रीनेटल का, और अब यह है कि प्राइमरी सर्जरी, जो फर्स्ट सर्जरी होती है 1 साल की उम्र के पहले होती है। हम कहते हैं कि क्लेफ्ट लिप जो है 3 महीने से 6 महीने के बीच में होना चाहिए, और पैलेट जो है रिपेयर जो है 9 महीने के बाद, 12 महीने या 18 महीने के पहले तक के होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हमेशा काउंसलिंग और बाकी चीज़ें जो हैं हमेशा सपोर्टिव होती हैं, लेकिन हमारा एम ये है कि पहले साल पहला बर्थडे जो है बच्चा जो है दोनों प्राइमरी सर्जरी होने के बाद होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा न्यूट्रिशनली ठीक रहे और हीमोग्लोबिन ठीक रहे और आप तैयार रहें सर्जरी करवाने के लिए सही समय पर। नेक्स्ट प्लीज। यदि बच्चा बड़ा हो जाता है, आप देखेंगे कि प्राइमरी सर्जरी होने के बाद भी कभी कभी हमको सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। एक है फिस्टुला क्लोजर, यदि मान लो हमारा फिस्टुला बच गया पैलेट रिपेयर के टाइम में तो वो सर्जरी करते हैं। कभी स्पीच ठीक नहीं है तो डॉक्टर जो है सही सलाह देते हैं, और 5 साल की उम्र के बाद विलोफेरिंजियल इनकॉम्पिटेंस और स्पीच के लिए कुछ सर्जरी की जरूरत होती है, वो कर सकते हैं। और इसके बाद 7-8 साल की उम्र के बाद में यदि बोन में गैप है, एल्यूलस में गैप है, तो बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं एल्यूलर बोन ग्राफ्टिंग। वो 7 साल 8 साल की उम्र में होता है। ये एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है, वो समय आने पर, सही समय आने पर हम सलाह देते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट। अब देखें कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो 12 साल के बाद में भी कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में ऑपरेशन की जरूरत हो। और इसमें हमको सेकेंडरी करेक्शन ऑफ नोज, लिप की जरूरत पड़ती है, और ये काफी बच्चों में जरूरत पड़ती है जिसमें लिप और नोज की डिफॉर्मिटी होती है। लेकिन यदि दांत ठीक नहीं है, मैक्सिला का डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो उसमें हमको, लेकिन सभी बच्चों में सभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों में जैसे भी जरूरत पड़ती है वैसे ऑपरेशन की जरूरत होती है, वो समय समय पर देख करके हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर पुनीत बत्रा टू टेक ओवर आफ्टर दिस स्लाइड, एंड दिस इज द ब्रीफ इन विच हमने बताया हुआ है कि प्राइमरी सर्जरी 1 साल के पहले होना चाहिए। सेकेंडरी सर्जरी जो है 5-7 साल की उम्र में जैसे भी ऐसे इंडिकेशन होता है उसकी जरूरत होती है, लेकिन सर्जरी के साथ में हमेशा हमको डेंटल ऑर्थोडोंटिक की जरूरत होती है, स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, कभी कभी ईएनटी सर्जन की जरूरत होती है, और काउंसलिंग की जरूरत होती है। ये हम देख करके आपको समय समय पर बताते हैं कैसी जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए आपको हमसे जुड़ करके रहना पड़ेगा, हमारे सेंटर से जुड़। ओवर टू डॉक्टर। नेक्स्ट। Thank you very much, sir, for the opportunity and for Smile Train to give me this opportunity to interact with the cleft children, the parents. Actually, we all are very passionate about treatment for cleft children. So I want to, my role today is to emphasize that cleft treatment is a team approach. And every member of the team, वो कहते हैं ना हिंदी में, हर एक दोस्त जरूरी होता है। तो वैसे ही, every specialist has his role at different period of time. और हमारे को टाइम लाइन क्लेफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो टाइम लाइन ओमिट करते हैं तो हमारे सक्सेस जो हमारे को बहुत अच्छी मिल सकती है, उसकी सक्सेस रेट कम हो जाती है। सो अगर जो ऑर्थोडोंशिया का रोल शुरू होता है वो बर्थ से ही शुरू हो जाता है। हम लोग वी डू समथिंग कॉल्ड प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें कि जो डिफेक्ट का साइज है उसको छोटा कर देते हैं, कुछ टेप और प्लेट्स लगाकर उसे छोटा कर देते हैं, और उसके बाद सर्जरी हो जाती है। जैसे करुण सर ने कहा कि फर्स्ट ईयर में प्राइमरी सर्जरीज हो जाती है। हमारा वो जो पीरियड होता है ट्रीटमेंट का वो 3 to 4 months रहता है। उसके बाद बच्चे की सर्जरी हो जाती है, जो कि मैं सब्सिक्वेंट 1-2 स्लाइड में दिखाऊंगा आपको।
जो इम्पोर्टेंट फेज है, जो है जहाँ पर बोन ग्राफ्ट की सर्जरी की जाती है, वो 8 से 11 साल की उम्र है। और इस उम्र पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक सही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की तरफ डायरेक्ट हों, ताकि हमारा वो बोन ग्राफ्ट प्रोसीजर सक्सेसफुल हो। उससे हमारा ट्रीटमेंट फाइनल आउटकम बहुत अच्छा आ जाता है, और वो भी मैं आपको कुछ केस दिखाऊंगा। और ऑर्थोडोंटिक्स नॉर्मली बच्चों में 12 साल की उम्र के बाद तार लगती है दांतों को सीधा करने के लिए। तो जैसे बाकी बच्चों को लगती है, क्लेफ्ट में कुछ इश्यूज होते हैं कि कुछ दांत मिसिंग होते हैं, कुछ दांतों का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो लेकिन बहुत अच्छा आउटकम आ जाता है जब दांतों को हम अलाइन कर देते हैं। अबाउट 25% बच्चों में जब ग्रोथ खत्म हो जाती है, जब वो 17-18 साल के हो जाते हैं, उस टाइम पे ऊपर का जबड़ा जो है वो पीछे रह जाता है। तो हमें एक सर्जरी करनी पड़ती है उसको सही जगह पर लाने के लिए। तो मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में एक एक चीज का एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मैंने आपको बताया प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स। अब देखिए, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारी चीजें माँ से बच्चे में आती हैं। ऐसे ही उसके नाक के सेप्टम में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है। अब ईस्ट्रोजन ज्यादा होने से क्या होता है कि टिश्यू एक प्लास्टिसिन की तरह है। वी कैन क्रिएट दैट इनटू एनी शेप। हम उसे कुछ भी शेप में क्रिएट कर सकते हैं। तो जो डिफेक्ट हमें बड़ा दिखता है उसे हम छोटा बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप इस फोटो को देखिए। ये बच्चा अभी 7 दिन का है। ये इसका फ्रंट डिफेक्ट है। बीच वाली फोटो दिखा रही है साइड व्यू, और कितना बड़ा गैप है दोनों सेगमेंट्स में। लेकिन हमने 4 महीने में प्लेट लगाकर, कुछ टेप्स लगाकर, प्रेशर लगाकर उसको एक नाक को शेप दे दी। आप देखिए डिफेक्ट का साइज छोटा हो गया, जो डिफेक्ट था वो गैप पास में आ गया। तो अब जब सर्जरी होगी तो वो बहुत अच्छा आउटकम उसमें मिल सकता है। लेकिन ये प्रोसीजर हर पेशेंट में रिक्वायर्ड नहीं होता है। जिनमें बड़ा डिफेक्ट होता है उसमें इससे करने से फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बोन ग्राफ्टिंग जो है दैट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जो कि मिक्स्ड डेंटिशन में होता है। मिक्स्ड डेंटिशन का मतलब ये है कि बच्चे के दूध के दांत भी हैं और परमानेंट आने शुरू हो गए हैं। एक ऐसी फेज होती है 6 साल से 12 साल तक, जबकि बचपन के दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों रहते हैं। तो इस पीरियड में इफ वी कैन एक्सपैंड, हम ऊपर के जॉ को सही पोजीशन पर ले आते हैं, तो बोन ग्राफ्ट करने से हमारे को सक्सेसफुल अलाइनमेंट हो जाती है टीथ की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देखेंगे कि इससे क्या फर्क हुआ। अब हमने जब अलाइन किया, ऊपर के आप देखेंगे दांत बिल्कुल पास पास थे, उन्हें हमें एक यू शेप देकर उनको सुंदर शेप दे दी। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा, आप नीचे बच्चे का अगर देखेंगे, जहां पर होंठ की सर्जरी हुई वहां नाक एक तरफ ढलका हुआ है, लेकिन बोन ग्राफ्ट करने से वो एरिया राइज हो गया, तो दोनों तरफ सिमेट्री बन गई। तो ये जो प्रोसीजर होता है बोन ग्राफ्टिंग का, ये फाइनल फेशियल आउटकम, फाइनल लुक में बहुत इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ये सही समय पे होने से बहुत लॉन्ग रन में ट्रीटमेंट आउटकम बेहतरीन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ बच्चों में ऊपर का जबड़ा पीछे रह रहा है, तो हम एक सिंपल अप्लायंस होता है जिससे हम ऊपर के जबड़े को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। क्योंकि अभी बोन्स जो है वो सॉफ्ट होती हैं, लेमैन लैंग्वेज में बोन अभी ऊपर सारी बोन से सूचर से नहीं जुड़ी है। तो ये बच्चे को 14 घंटे पहनना होता है, और इसमें से 8-10 घंटे तो सोने में ही लग जाते हैं। तो कुछ घंटे बिना स्कूल में पहने इस अप्लायंस से कुछ पेशेंट्स में हम ऊपर के जॉ को बाहर ले आते हैं। उससे एक बाद में जो बड़ी सर्जरी है वो अवॉइड हो जाती है। तो ये भी सही समय पर ही हो सकता है। अगर हम बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इस प्रोसीजर को हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप इस बच्चे को देखिए, सारे दूध के दांत में कीड़ा लगा है। पहली स्लाइड में बच्चे का जो फेस है वो एक तरफ टिल्टेड है। अब हमने सबसे पहली चीज जो हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि जैसे ही पहला दांत आए उसको साफ रखना है, उसको बेबी ब्रश से क्लीन रखना है,
बिकॉज क्लेफ्ट में जब स्कार होता है लिप का और पैलेट का, तो बच्चे अच्छे से वहां तक अप्रोच नहीं कर पाते। तो जितना हम अपने दांतों को साफ रखेंगे उतना हमारे ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रहेगा। कारण क्लेफ्ट बच्चों में सम टीथ आर लेस, कुछ दांत कम होते हैं और कुछ अलग छोटी शेप के या बड़ी शेप के होते हैं। अब इस बच्चे में हमने सारी करेक्शंस करी हैं और हमने जो बच्चे के अपने दांत थे उनको जिस जिस जगह पर अलाइन कर सकते थे वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये, मैं इसको अपनी सुपरस्टार कहता हूँ। तो ये सुपरस्टार कैसे बनी है, ये करुण सर ने भी इसमें सर्जिकल वो किया है, अपना मास्टरपीस किया है, इनका लिप प्रिपेयर किया है। और यही पीछे स्लाइड थी इस बच्चे की कि जहां से बचपन से सही समय पर इंटरवेंशन करते हुए वी हैव ब्यूटीफुल स्माइल एंड अ सुपरस्टार इन द मेकिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बच्चों के दांत टेढ़े होते ही हैं और 12 साल पर इलाज उनका ब्रेसेस तार लगाकर होता ही है, पर क्लेफ्ट में ये एक बहुत ही अच्छा चेंज ले आता है। अगर आप देखेंगे जो बच्चे के दांत हैं उन्हें सीधा करने से उस बच्चे की स्माइल पे कितना अच्छा असर हो गया। तो ये क्लेफ्ट के अंदर अगर हम राइट टाइम पे ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशन कर पाते हैं तो स्माइल बिल्कुल चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ बच्चों में, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, 25% बच्चों में ऊपर का जबड़ा पीछे रह जाता है। तो अगर वो पीछे रह गया है तो जो हमारा अपर फेस है वो ऐसे लगता है कि थोड़ा दबा हुआ है। तो इन केसेस में हमें ऊपर के जॉ को सर्जरी कर कर आगे लाना होता है। पर ये प्रोसीजर होता है जब बच्चे की पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। फॉर गर्ल्स यूजुअली 17 साल, लड़कों में यूजुअली 18+। तो ये प्रोसीजर कर कर हम ऊपर के जॉ को आगे लेकर आए हैं। तो हम लोग कुछ भी प्रोसीजर सही समय पर करने से वी कैन गेट अ ब्यूटीफुल आउटकम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So I request Dr. Karun to take over and continue. Thank you, Puneet. You have done a great job. और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत क्लियर एंड बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से लोगों को जो सुन रहे हैं उनको समझ में आया होगा। और जैसे कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम कहते हैं क्लेफ्ट में, उसमें सर्जरी, डेंटल केयर या ऑर्थोडोंटिक्स, और तीसरा बहुत अहम पार्ट है वो है स्पीच। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इवन चैट बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं स्पीच के बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज दिस गोज लॉन्ग वे इन कम्युनिकेशन, और फ्यूचर में पब्लिक डीलिंग में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमेशा अच्छा होना चाहिए। और ये हर पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न होता है। एक मैं आगे बताने से पहले ये बताऊंगा कि क्लेफ्ट लिप यदि है या क्लेफ्ट लिप एंड एल्वियोलस है तो स्पीच की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो उस ऐसे बच्चों में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्लेफ्ट पैलेट है तभी स्पीच की प्रॉब्लम होती है। और जब क्लेफ्ट पैलेट होता है तो उसमें जो स्पीच असेसमेंट है, स्पीच थेरेपी है, वो भी समय समय पर दी जाती है। जब हम क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी करते हैं 9 से 12 महीने या 15 महीने के आसपास, तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आगे स्पीच के लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है। और 3 साल की उम्र के बाद में, क्योंकि बच्चा अच्छे से बोलने लगता है, उस टाइम फिर हम स्पीच थेरेपिस्ट जो है उनको स्पीच थेरेपी देते हैं। 5 साल की उम्र के बाद में हम स्पीच असेस करते हैं, और यदि उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको एंडोस्कोपी या एक्सरे से हम देखते हैं। और उसके बाद जैसी भी ज़रूरत होती है, यदि ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन का सलाह देते हैं या ऑपरेशन करते हैं, या फिर स्पीच थेरेपी से वो सब करेक्शन करते हैं। तो स्पीच का कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन 5 साल से के बाद में नहीं है। और जैसे भी बच्चे को स्पीच डिफॉर्मिटी होती है तो सर्जन, ऑर्थोडोंटिक्स और स्पीच थेरेपिस्ट मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इसमें आगे क्या अप्रोच होना चाहिए। यूजुअली एंडोस्कोपी या वीडियो फ्लोरोस्कोपी करते हैं, और स्पीच असेसमेंट करके कोई भी सर्जरी की जरूरत होती है तो समय समय पर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो आप देखिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर में न्यूट्रिशन, डेंटल
स्पीच और सर्जरी, और साथ में हम ENT के लिए कान में भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो उनको भी इंक्लूड करते हैं, और पीडियाट्रिशियन जैसे भी जरूरत होती है। सो आपकी काफ़ी टीम होती है जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर देते हैं, और सबका ओपिनियन, सबका सपोर्ट जो है समय समय पर जरूरत होती है। नाउ अब जो बड़े बच्चे हैं उनमें 4 इश्यूज बचते हैं यूजुअली। एक तो है फिस्टुला, कभी कभी लीक होता है। दूसरा स्पीच इश्यूज के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरा है कॉस्मेटिक इश्यूज, उसमें नोज और लिप के करेक्शन की जरूरत पड़ती है, और फेशियल बोन विच डॉक्टर पुनीत हैज ऑलरेडी टोल्ड इन डिटेल। नेक्स्ट प्लीज। सो जैसे ये है फिस्टुला, हम यदि ऑपरेट करें तो फिस्टुला कोई भी टाइप का हो, आप देखिए 2 जगह फिस्टुला है और ये बिल्कुल सर्जरी से सही हो सकता है। तो हमारा एम ये होता है कि प्राइमरी सर्जरी जब करते हैं उस टाइम फिस्टुला फ्री, कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी हो तो आगे प्रॉब्लम कम होती है। तो ये करेक्टेबल प्रॉब्लम है और सर्जिकली करेक्टेबल है। नेक्स्ट प्लीज। स्पीच के बारे में आपको बताया था, इट्स अ बिग चैलेंज, और काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है जो क्लेफ्ट पैलेट के साथ में होते हैं। लेकिन सही समय पर थेरेपी दी जाए, सही समय में एग्जामिनेशन की जाए और उनकी अप्रोप्रिएट सर्जरी की जाए तो उसका भी इलाज होता है। नेक्स्ट प्लीज। एस्थेटिक कंसिडरेशन, ये क्लेफ्ट लिप या एलियोलस और क्लेफ्ट के साथ में जब नोज डिफॉर्मिटी होती है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन आप देखिए सर्जरी करके हम इनको बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं, और दिस इज अनदर स्टार या यू कैन से क्लेफ्ट एम्बेसडर इन हमारे हॉस्पिटल में, जो हमेशा आते रहते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। इनको देख करके सब बच्चों में काफ़ी मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट। सो लिप, पैलेट और जितने कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारे करेक्टेबल हैं सर्जिकली और नॉन सर्जिकली अप्लायंसेस से। सो ये भी एक स्टार परफॉर्मर है हमारे टीम के। नेक्स्ट प्लीज। सो इन नटशेल, every child born with cleft lip and palate, we have potential to create normal smile on their face. सारे बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, और उसमें हम समय समय पर यदि सही समय पर सही इलाज करें तो सब के सब जो हैं मुस्कुराते रहेंगे और नॉर्मल बच्चे बन सकते हैं। स्माइल ट्रेन और हम लोग मिल करके आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। वी कैन हेल्प एंड गाइड यू एट अप्रोप्रिएट मोमेंट, जैसे भी आपको ज़रूरत होगी। और हमारा एम यही है, और ये फोरम का एम यही है कि हम एक कम्युनिटी बनाएं जिसमें आपस में आप बात कर सकें और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। मैं आशा करता हूं कि हम लोगों का प्रेजेंटेशन आपको सिंपल लगा होगा, समझ में आया होगा, और यदि कोई भी इश्यूज हैं तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू मॉडरेटर प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। आप दोनों से सुनकर, आपका प्रेजेंटेशन देखकर हमें बहुत जानकारी मिली है, काफ़ी उम्मीद, होप, ऑप्टिमिज्म वो भी कि दिस इज ऑल पॉसिबल। और जैसे आपने कहा कि ये नॉर्मल है, कौन डिसाइड करता है कि नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है? सोसाइटी। डोंट लेट दैट जज यू प्लीज। तो आई गॉट क्वेश्चंस दैट हैव बीन कमिंग इन। डॉक्टर करुण अग्रवाल के लिए हमारे पास सवाल है कि इज दिस अ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी? सर्जरी इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट क्योंकि छोटे बच्चों में हम ऑपरेट करते हैं, उसको बेहोश करते हैं, सडन एनेस्थीसिया देते हैं, तो एक रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व। सडन एनेस्थीसिया छोटे बच्चों में एक जब होता है, लेकिन हम सैकड़ों हजारों ऐसे ऑपरेशन करते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चों को ऑपरेट करते हैं, यूजुअली कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं, और हम पूरा ख्याल करते हैं कि बच्चा सेफ रहे। और इसकी जो बहुत बारीकी से देखी जाती है कि ऑपरेशन से पहले बच्चा जो है उसका खून ठीक होना चाहिए, सर्दी खांसी नहीं होना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए। तो पहले बच्चे वाले डॉक्टर देखते हैं, एनेस्थेटिस्ट देखते हैं, सब मिला करके उनको फिट करते हैं, और जब हम पाते हैं कि बच्चा सही है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नहीं है, तभी हम उसका ऑपरेशन करते हैं। और हम वी मेक श्योर दैट चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू पेरेंट्स एज अ नॉर्मल चाइल्ड। थैंक यू। ऑल्सो लेट एज में अगर ऑपरेशन करें, जैसे आपने कहा था कि
एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, बट अगर लेट एज में ऑपरेशन होने से रिकवरी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ऑपरेशन कभी भी करें रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन जहां तक के आइडियल की बात है, जहां तक के आदर्श समय की बात है, यदि आपको एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये आदर्श समय पे ऑपरेशन करें, आदर्श तरीके से ऑपरेशन करें, सही तरीके से ऑपरेशन करें, अच्छे क्वालिटी का ऑपरेशन करें, तो एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। यदि किसी को आप 1 साल में जो ऑपरेशन है, यदि 15 साल में ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि स्पीच जो है नॉर्मल नहीं आए, यदि क्लेफ्ट पैलेट है तो, लेकिन क्लेफ्ट लिप है तो किसी भी उम्र में ऑपरेशन करें, he will have complete recovery and he will be absolutely perfect, यदि हम पहले ऑपरेशन करें या बाद में ऑपरेशन। सवाल केवल क्लेफ्ट पैलेट बच्चों का है जिसमें हम कहते हैं कि यदि लेट ऑपरेशन होगा तो स्पीच की क्वालिटी जो है पुअर हो सकती है इन स्पाइट ऑफ आवर ऑल द एफर्ट। इसीलिए पेरेंट्स मस्ट ब्रिंग द चाइल्ड हमारे क्लिनिक में और क्लेफ्ट क्लिनिक में, स्माइल ट्रेन सेंटर में एज अर्ली एज पॉसिबल, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, so that we can take care at appropriate time, और हम सही सलाह दे सकते हैं पेरेंट्स को, समय समय पर देख करके सही समय में हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं, या जो भी काउंसलिंग की जरूरत होती है सब कुछ वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर। मेरे जो अगले सवाल है वो डॉक्टर पुनीत बत्रा के लिए है कि छोटे शहरों में, स्मॉलर सिटीज में, व्हाट शुड बी द अप्रोच? शुड दे अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल सर्जरी के लिए? देखिए, स्माइल ट्रेन के सेंटर्स आर इन एवरी स्टेट, देयर आर 150 सेंटर्स, एंड हर मतलब अप्रोचेबल एरिया में जहाँ पर क्वालिटी केयर है, जहाँ पर हॉस्पिटल में बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो सेफ सर्जरी के लिए हैं, वहाँ पर दे आर वेलकम टू गो। उसमें बहुत लंबी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए होती। तो इवन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आज की इंटरनेट की जनरेशन में देर आर एवरीवेयर हॉस्पिटल्स जहाँ पर अप्रोच किया जाएगा और वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है इनको। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, इज इट पेनफुल? ये जो ऑर्थोडोंटिक्स की ट्रीटमेंट होती है, एंड व्हाट इज द सक्सेस रेट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज नॉट पेनफुल। एक्चुअली देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ तो देयर इज अ शॉक इन द फैमिली। अब आपने उसको बहुत सारी प्लेट और टेप लगाने को कहा, तो इट इज लाइक वी जस्ट हैव टू ब्रिज द गैप कि हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स हैं, जबकि मदर की ईस्ट्रोजन नेजल सेप्टम में हाई है, तो हमें उसकी शेप उसी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ मेंटल ब्लॉक विच वी हैव टू ओवरकम। पेन नहीं है। देखिए क्या होता है, बच्चा जरा सा भी एक कोई नई चीज हमारे मुंह में रखी जाए तो हमारे को भी वी वांट टू फर्स्ट रिमूव इट, ठीक है? तो वो 1 or 2 days देयर इज डिस्कम्फर्ट, द चाइल्ड विल क्राई, रात को जगाएगा, जैसे न्यू मदर वुड नो, इवन इफ इट इज अ नॉन क्लेफ्ट चाइल्ड, रात को जागना पड़ेगा। तो वो यू हैव टू जस्ट ओवरकम दैट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ऑर्थोडोंटिक्स में वायर्स और वो लगते हैं, नन ऑफ देम आर पेनफुल। दिस इज द रूटीन ऑफ एनी ग्रोइंग चाइल्ड कि आजकल सब लोग ब्रेसेस से दांत सीधे करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं पेन इन्वॉल्व नहीं है। बट इट इज इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन। जैसे आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, आपको अच्छी सफाई रखनी है टीथ की, आपको हार्ड चीजें अवॉइड करनी है खाने को ताकि वो ब्रेसेस टूटे ना, आपको बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और टीथ डैमेज ना हो। सो मतलब पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इट इज ओनली दैट इसमें कोऑपरेशन के बिना आउटकम नहीं मिलता। तो बेसिक थिंग इज कि हमें सेम पेज पर एज अ टीम उस बैटल को विन करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, इतनी पेशेंटली हमारे सारे सवाल लेने के लिए और सब कुछ हमें समझाने के लिए इतनी आसान तरीके से। थैंक यू।